Let us start 17th chapter, that is collecting and organizing data. Okay, so students, from the topic itself, what we can conclude is we have to collect something, right? And after collecting something, we have to organize it. We have to organize it. यानी हमको कलेक्ट करना है कुछ चीज और बाद में उसको ऑर्गेनाइज भी करना है. So students, in this specific lesson, let us take an example, and with that example you will come to know that how we are collecting and what is organizing. So students, from 26th July of this month, PT1 is there, periodic test will be there. Yes, sir. Right? Yes. Of how much mark will it be? कितने मार्क की रहेंगी वो? 20. 20 marks. Okay. So students, suppose we have taken marks of some students of one of the subject. Let us say maths. अगर maths में इस तरह से अगर marks मिले हैं students को 14, I am writing some numbers here, 7, 19, 8, 9, 9, 12, 17, 18, 5. So, keep silence, students. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Here, students, you can see I have written here 11 students mark of mathematics. मैथ्स में 11 स्टूडेंट्स को ऐसे मार्क्स मिले हैं. ओके, दैट मीन्स हमने क्या किया स्टूडेंट्स? वी कलेक्ट द डेटा. वी कलेक्ट द डेटा, राइट? डू यू अंडरस्टैंड नाउ? Yes, sir. Collect the data. Now students, organizing data, इसको अभी हमको एक पर्टिकुलर फॉर्म में रखना पड़ेगा so that उसको हम अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सके. इसमें सबसे पहली बात मैं इसको चाहूंगा स्टूडेंट्स कि इसको मैं एक तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर. सो स्टूडेंट्स, हियर I am going to write the data in ascending order. Okay, you can write in descending order also, but I am trying to write it the data. ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है. थ्रू दिस एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमको कुछ ऐसे टर्म्स पढ़ने हैं जो कि हमको इस लेसन में काम आने वाले हैं. सो फोकस हियर. सो असेंडिंग ऑर्डर में क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स? जस्ट टेल मी. 5. Okay. 8. 7. 7. 7. Okay. Later on. 8. Okay. 9. After that. 9. 9. Okay. और 9 है. 9. और एक Once 9 again. है. और एक 9. और एक बार है 9. Okay. Very good students. After that. 12. 12. Very good. And 12. later on. 14. 14. Very good. Later on. 17. 17. 18. 18. 18. And 19. 19. 9. Now students, we have to check here. कितने नंबर्स थे ये? कितने स्टूडेंट्स के हमने लिए थे? 11, राइट? 11. So let us check students. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, that means we didn't miss any number. हमने एक भी नंबर मिस नहीं किया है. Now students, इसको हमने अभी क्या किया है? ऑर्गेनाइज किया है प्रॉपरली, राइट? ये एक पैटर्न हो गया. Now students, regarding the terms range, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? Range. So range is nothing but these all are observations. ये सभी को हम observations बोलते हैं. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स?
Observation. ऑब्जर्वेशन बोलते हैं या इसको हम स्कोर भी बोल सकते हैं. Each number in the data is nothing but observation or score. Do you understand? Yes. हर एक जो नंबर होता है उसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं या फिर डेटा बोलते हैं. Now students, what is range? It is nothing but the highest observation और ये जो lowest observation है, the difference between the highest observation and lowest observation is range. उसको हम range बोलते हैं. So what is range, students? Can you tell me now? Highest value and data. Highest Highest observation. Highest observation minus And highest lowest. score. Lowest observation. Lowest score. Okay, okay, very good. So which one is highest here? 19. 19. Very good. 19. Minus 5. 5. So what will be score, students? Score क्या हो जाएगा? 13. 14. 14. Very good, students. Now इसके बाद में हमको जो पढ़ना है स्टूडेंट्स वो है, यहाँ पर मैं हेडलाइन लिख रहा हूँ, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं उसको. हम क्या बोलते हैं? Measures of central टेंडेंसी. ओके, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उसको हम बोलते हैं. नाउ स्टूडेंट्स इसमें 3 पार्ट आते हैं. हाउ मेनी? 3 पार्ट्स. 3. सबसे पहला पार्ट होता है स्टूडेंट्स जिसको हम बोलते हैं मीन. जिसको हम क्या बोलते हैं? मीन. ये मीन क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. Sum of all observations upon number of observations upon number of observations. Now students, इसमें क्या होता है? इससे हमको क्या पता चलता है? स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने 11 स्टूडेंट्स के मार्क्स कलेक्ट किए हैं. नाउ मैं ये देखना चाहता हूँ कि इनका एवरेज क्या है एक्चुअली. यानी 20 में से जो मीन है उसको मुझे निकाल कर देखना है वेदर स्टूडेंट्स गॉट सेटिस्फाइड मार्क्स और नॉट. डू यू अंडरस्टैंड? Yes. Yes, sir. ओके, सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट हमारा जो है मीन, उसको फॉर अगर इस एग्जांपल में अगर हमको छुड़ाना है, सो व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस? शुड वी ऐड ऑल दीज और नॉट? इन सबको ऐड करना पड़ेगा. Yes, sir. Yes, So sir. students, Yes, sir. so students 5 plus 7 plus 8 plus 9 plus 9 plus 9 plus 12 plus 14 plus 17 plus 18 plus 19. ओके, अब इसको कैसे फास्ट छुड़ाए? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं सिंपल लॉजिक बताऊंगा आपको. यहाँ पर देखो, ये यूनिट प्लेस को हम ऐड कर लेते हैं. सिक्सटी 67 आ रहा है. सो 67 का 7 आ जाएगा तो कैरी हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 117. इज इट करेक्ट स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay. Yes, So students, what is the sum of all observations? 117. So how many? 117. Now okay, 117. Very good. Now tell me students, number of observations कितने हैं? हमने कितने लड़कों का लिया था? 11. Very good. So students, 11. it will be 117 upon 11. इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? क्योंकि ये मैंने डिवीजन में अच्छे से बताया है. बी केयरफुल, यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इन सच डिवीजन. बताओ तो कौन बताएगा?
हाँ 11, 10, देखो देखो देखो, यहाँ पर मैं इस कॉर्नर में करके दिखा रहा हूँ आपको, डिवाइडेड बाय 11, 11 1 जार 11, ओके। बाद में मैंने 7 Yes, को sir. लिया, तो टेबल कभी भी कहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स? 0 जार से। कहाँ से? 0. 0 जार। 11 0 जार 0, राइट? तो 7 as it is now, decimal point, and 1 0 we can take. Is it clear? 11 Yes, 6 sir. are 66, so 4 0. So 11 3s are. So it is nearly 10.6. यानी आफ्टर फाइंडिंग आउट मीन, मुझे ये समझ में आया स्टूडेंट्स कि आउट ऑफ 20 10.6 मार्क मिले हैं बच्चों को। शुड आई सेटिस्फाई? मुझे सेटिस्फाई रहना चाहिए स्टूडेंट्स। शुड आई सेटिस्फाई एज अ टीचर? एज अ टीचर के हिसाब से मुझे सेटिस्फाई रहना चाहिए क्या मीन के ऊपर? हेलो, शुड आई सेटिस्फाई? हेलो, आंसर मी। सर 10.63 है ना? हाँ, it is approximately 10.6. I am saying approximately 10.6. So as a teacher, should I satisfy? टीचर के हिसाब से मुझे सेटिस्फाई रहना चाहिए क्या? No, not at all. Not at all. It should be at least 14 to 15. Okay. हाँ, now students, ये तो हमारा ऐसा ही पार्ट था। अभी सेकंड पार्ट हमको देखना है स्टूडेंट्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, दैट इज नथिंग बट मीडियन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? Median. मीडियन। इट इज द सेकंड पार्ट एक्चुअली। नाउ मीडियन का भी मतलब सेंटर में ही होता है, बट इसको चाहिए कीप योर सेल्फ म्यूट। आई एम गोइंग टू म्यूट यू ऑल नाउ। Okay, now students, here median, what median needs? यहाँ पर students सम कैसे भी करो तो भी वही आने वाली है, क्योंकि सम के लिए हमको मालूम है 2 + 3 करेंगे तो भी 5 आएगा, या 3 + 2 करेंगे तो भी 5 आएगा। बट फॉर मीडियन, मीडियन के लिए हमको स्पेसिफिकेशन चाहिए। व्हाट वी नीड? वी शुड हैव द डेटा इन अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में ही चाहिए। और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसको हम n से दिखाते हैं। किससे? N से। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं यहाँ पर? ये असेंडिंग ऑर्डर में है ऑलरेडी 11 ऑर्डर 11। वेरी गुड। अभी मुझे बताइए स्टूडेंट्स कि बीच का जो नंबर है या हमारा स्कोर है या ऑब्जर्वेशन है सेंटर का, उसको निकालने के लिए ये तो बहुत इजी था। इसमें तो हम सीधा बोलेंगे कि सर यहाँ से 1 2 3 4 5 इधर से लेकर जाओ, राइट? बराबर है। और 5 इधर से लेकर आ जाओ, 5 5 चले गए तो ये हमको सेंटर में मिल जाएगा। इज इट राइट और रॉन्ग? मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको, ये बराबर है कि नहीं है? राइट सेंटर में, सेंटर में अगर हमको, हाँ वेरी गुड स्टूडेंट। तो लुक हियर, इधर से 5 गए स्टार्टिंग से और आखिरी से यहाँ तक 5 ऑब्जर्वेशंस गए, तो ये हमको मिल गया। बट ये हमेशा हम ऐसे ही करेंगे क्या? यहाँ से इतने गए, यहाँ से इतने गए, कि उसके लिए कुछ फार्मूला चाहिए? फार्मूला चाहिए। वी नीड फार्मूला चाहिए। Formula चाहिए। वेरी गुड। सो व्हाट इज दैट फार्मूला? ये जो n है वो ऑड जब रहता है, n 11 ऑड नंबर है ना बेटा? 11 ऑड नंबर है। ओके, तो ये जब ऑड नंबर रहता है तब मीडियन कैसे निकाला जाता है? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर तब मीडियन निकाला जाता है n + 1/2 टर्म या ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रहा है? मैंने फार्मूला क्या बताया? व्हेन वो ऑड रहता है तब मीडियन निकालने का फार्मूला ये होता है, एक तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो लिखना ही है हमको, एंड लेटर ऑन n + 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट मीडियन। सो लेट अस सी,
n कितना है 11 है, तो 11 प्लस 1 करो बाय 2 करो, कितना आया 11 प्लस 1 करो, कितना आया 12 डिवाइडेड बाय 2 करो 6 ऑब्जर्वेशन। अभी काउंट करो स्टूडेंट, 6 ऑब्जर्वेशन कौन सा है 1 2 3 4 5 6, वही है कि नहीं है 09 6 ऑब्जर्वेशन, यानी हमारा आंसर क्या आया 9। सो स्टूडेंट्स व्हाट शुड वी डू, ये जो हमारा 6 ऑब्जर्वेशन है वो आया 9। दैट मीन्स स्टूडेंट्स हमको ये पता चलता है कि व्हेन n इज ऑड, n जब ऑड रहता है स्टूडेंट्स तब हमको इसका यूज करना चाहिए, राइट? डू यू अंडरस्टैंड? ओके, Yes, sir. नाउ स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, Sir. अगर इवन रहता है तो फिर सपोज रहता है तो फिर हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। अगर ये समझ लो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से एक नंबर अभी कम कर रहा हूँ, देखो स्टूडेंट्स मैंने 19 को हटा दिया, अभी कितने हैं n कितने हैं अभी बताओ 10. 10। वेरी गुड। नाउ स्टूडेंट लुक हियर, अभी n है हमारे 10, ये कौन सा नंबर है, ऑड है कि इवन है? Even. इवन नंबर, वेरी गुड स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा सा स्पेस तैयार कर रहा हूँ, ये बोर्ड थोड़ा छोटा है। ओके हाँ, सो स्टूडेंट्स n अभी 10 है एंड यू नो दैट इट इज इवन नंबर। अगर हमने बिना फार्मूले के अगर सोचते हैं हम तो क्या सोचेंगे, देखो यहाँ से गए 4, यहाँ से कितने गए स्टूडेंट्स 4, इधर से गए 4 और बीच में कितने मिले हमको 2, 9 099. भी हमको एवरेज निकालना पड़ेगा ना, इनका भी हमको क्या निकालना पड़ेगा एवरेज, तभी मिलेगा Average. तभी मिलेगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. that sir. means what? That means what? If 1 10 अगर यानी if n is an even number, then what should we do? That is the question. So in that case, students, I am writing the formula here. Median is nothing but the arithmetic mean, या average भी बोलते हैं, arithmetic mean of n by tooth and n by tooth and n by 2 प्लस 1 बाहर है, ये ऐसा नहीं है, ये n प्लस 1 बाय 2 है, दोनों में मिक्स यानी कंफ्यूज मत होना, ये अलग बात है n प्लस 1 बाय 2 और ये अलग है n बाय 2 प्लस 1, इनका एरिथमेटिक मीन निकालना है। सो स्टूडेंट्स n बाय 2 कितना आएगा, n बाय 2 कितना आएगा 5 और 10 बाय 2 प्लस 1 कितना आएगा 6। वेरी गुड, सो सिंपल, यानी 10 बाय 2 तो 5th आएगा, राइट? और 10 बाय 2 प्लस 1 कितना आएगा 6th, तो 5th और 6th ऑब्जर्वेशन का हमको एरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। मीन स्टूडेंट्स 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, व्हाट इज आवर 5th ऑब्जर्वेशन 9। वेरी गुड, 9. okay, and what is our 6th observation 9। so 9 plus 9 by 2, 9 plus 9 by क्या करना पड़ेगा हमको 2 करना पड़ेगा, उनका एवरेज निकालना है 18 by 2. 18 by 2 यानी कितना 9. okay, very good students। now students you Sir. come to hello 57 students are Sir, present here। can you explain this? okay, one second, look Sir, here। can you explain this again? okay, so students यहाँ पर देखो, if n equals to 10 इवन नंबर जब रहता है तो हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि इधर से 4 और इधर से 4 गए, ऐसा नहीं बोल पाएंगे। फॉर दैट हमको क्या चाहिए, फार्मूला, राइट? हमको फार्मूला चाहिए, तो वो फार्मूला क्या है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ n by 2 and n by 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशंस, यानी n by 2 कितना हो गया 10 by 2 यानी 5th हो गया, एंड कीप योरसेल्फ म्यूट, and n by 2 plus 1, that means 5 plus 1, so it becomes naturally 6। so 5th और 6th ऑब्जर्वेशन का हमको क्या निकालना पड़ेगा
अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा. सो स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी इट? फिफ्थ हमारा ऑब्जर्वेशन है 9, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन इज आल्सो 9 डिवाइडेड बाय 2. सो 9 + 9 18, 18 by 2 यानी 9 आ गया. यानी हमारा, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now students, one more part. Don't. Please take another example. Sir, sir, side I this didn't I understand. have to अरे take हमारे हुए ही नहीं है. example. Don't. Students, keep Sir, silence. I have to take steps like Students, keep silence, please. हाँ. So next part. अभी इसका next part भी है. दोनों ही तो हुए हमारे. पहला मीन हो गया, दूसरा हमारा मीडियन हो गया. Now students, the third part is mode. क्या बोलते हैं उसको हम? Mode. Mode. So students, Mode. mode भी एक measures of central tendency है. ये मगर जैसे स्टूडेंट्स मालूम है कि आपको, जैसे कार है समझ लो, अलग अलग कलर के क्या है, कार है. तो हमको अगर कार परचेस करनी है तो हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा लोग कौन सी कार को, कौन से कलर की कार को पसंद करते हैं. ये अगर हमको चूज करना है तो हम क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे कि अगर 100 कार्स अगर बेची जाती है, उसमें से सबसे ज्यादा कार कौन से कलर के बेचे जाते हैं. आउट ऑफ 100 कौन से कलर के, उसमें सबसे ज्यादा सपोज व्हाइट कलर की कार अगर 40 लोगों ने ली है और बाकी के उससे कम, ठीक है, तो हम भी क्या, हमको क्या आउटपुट मिलेगा कि सबसे ज्यादा कौन सा कलर पसंद आता है, व्हाइट. तो वो Right. ऐसा जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट हमको मोड में काम आता है. मोड इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन. मोड यानी क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है ऑब्जर्वेशन, उसको ही हम क्या बोलते हैं, मोड. तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में मोड क्या होगा बताओ. 9. व्हाई 9? Because the 9 सबसे is ज्यादा बार आया है. सबसे ज्यादा बार आया है. यस, ठीक है. उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए एक नाम है, आपने वो पढ़ा होगा, उसके लिए एक नाम है, क्या है, तो 3. फ्रीक्वेंसी. उसकी फ्रीक्वेंसी 9 इस नंबर की फ्रीक्वेंसी अदर नंबर से ज्यादा है. सो दैट इज नथिंग बट द मोड विच ऑकर्स फ्रीक्वेंटली. जो फ्रीक्वेंटली आता है स्टूडेंट्स, उसको हम मोड बोलते हैं. और इस एग्जाम्पल में मोड इज 9. डू यू अंडरस्टैंड इट नाउ प्रॉपरली? Yes, Yeah. sir. Yes. yes. अभी देखो sir. स्टूडेंट्स, No, और एक बात मैं sir. क्लियर कर रहा हूँ अभी, और No, एक बात sir. मैं, व्हाट Sir, सेइंग, Sir, Arohi. hello, just let me take a snap now. Sir, I doesn't understand.